Good morning, students. Today we will discuss about bases. So let's start. So what are bases? Bases give OH negative ion, right? They will give OH negative ions when they react with or when they dissolve in water. So bases are generally bitter in taste. Yes, they are bitter in taste and they feel soapy when they are touched. Right, when they are touched they feel soapy. They turns red litmus to blue. When you dip red litmus in bases, it turns into blue color. Okay, so bases give OH negative ions in aqueous solutions. Okay, when it dissolved or base is dissolved in water, so they will give OH negative, means hydroxyl ion. The solutions conducts electricity because ions are present in the solution. That's why solution conduct electricity, right? Because ions are responsible for the conduction of electricity. And methyl, or it changes methyl orange to yellow. So these are the indicators. I have also discussed this thing when we are studying about the acids. So it changes methyl orange to yellow color, right? Methyl orange का कौन से कलर में चेंज कर देता है? येलो. और मिथाइल रेड इज ऑल्सो येलो कलर. Phenolphthalein is an also indicator, so it changes phenolphthalein into pink color. And if you talk about turmeric, so turmeric powder को इसमें कन्वर्ट कर देता है रेडिश ब्राउन. So see, detergents are also like bases, right? Detergents are also base. So you have also observed when you eat something, right? If there is a spot on your clothes, right, of any curry, so if you wash that cloth with soap, so what do you observe? You observe a reddish patch over there. So that reddish patch is due to this, because the soap or detergent which we are using, that is a base, and it convert yellow turmeric color into reddish brown color. So this is the property of base. So let us discuss strong bases. What are strong bases? Strong bases are those bases which ionize completely in water, right? वाटर में completely ionize हो जाते हैं और प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड. और जो ज़्यादा अमाउंट में कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. सो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. Okay, let's know what are weak base. So weak base are just opposite of strong base, right? So a weak base is partially ionized in water. fully ionized नहीं होगा water में, partially ionized होगा और produce a small amount of hydroxide ion. और बहुत कम amount में जो hydroxide ion produce करेगा, तो उसको हम बोलते हैं weak base. That is called weak base. So what are the examples of weak base? That is ammonium hydroxide or magnesium hydroxide. These are the example of weak base. Okay, because they do not form so much hydroxide ion when they dissolve in water, right? So let's see some uses of base. So NaOH is used in the manufacture of soap, right, पेपर और सिंथेटिक फाइबर. तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है. इसको हम बोलते हैं रेयॉन. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
का ही दूसरा नाम क्या है, स्लिग्नाइन, राइट। इट इज़ कॉल्ड स्लिग्नाइन। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन एज एन एंटासिड, राइट। एंटासिड टैबलेट्स जो हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, तो उसमें कौन सा बेस यूज़ होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव, नाउ वी विल सी द रिएक्शंस ऑफ bases. So let us discuss the reactions related to bases. So first we will see how bases reacts with metal. Okay, जो बेस हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि हमने एसिड्स का देखा था, एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लाइक द वेज bases also react with metal and they form salt or hydrogen gas. See, generally we can write that base जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, they will form salt or hydrogen gas, right. So let's see an example. NaOH, this is a base, sodium hydroxide. Okay, AQ means aqueous form में है. Okay, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है जिंक के साथ, जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो क्या होगा, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट, ठीक है। एंड आफ्टर हीटिंग बट वी विल गेट सोडियम जिंकेट एज अ प्रोडक्ट. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, Na2, राइट, जिंक और O2, right. So what it will be sodium zincate, that is a salt. We will get salt or hydrogen gas, so H2 will remove in this process. See, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो उसमें रिमूव हुई है या नहीं हुई, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम टेस्ट करके देख सकते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज्ड और इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स. जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है टेस्ट ट्यूब में से, तो हम उसके पास बर्निंग कैंडल ला के देखेंगे, ठीक है. जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, तो वो क्या होगी, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएगी. ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हमने पहला एग्जांपल लिया था जिंक मेटल के साथ. अगर हम टिन मेटल को इसमें डालते हैं तो व्हाट इट विल फॉर्म सोडियम स्टैनेट. So these two reactions are very important. You have to revise these reactions. Sodium stannate, it will form और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, ठीक है. अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर. तो सारी की सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती बेसिस के साथ, ठीक है. सारी की सारी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट नहीं फॉर्मेशन करती. सो लेट्स सी द अनदर रिएक्शन विच वी हैव सीन इन एसिड्स ऑल्सो. व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी. बट अगर हम एसिड्स की बात करें तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या बना था, वहाँ पे सॉल्ट बना था, वाटर बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी. बट यहाँ पे बेस मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट जब करेंगे तो कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, ओके, किसके साथ, बेसिस के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट और वाटर की. लेट्स सी, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो जनरली उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर, राइट. सो व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल गिव सॉल्ट और वाटर. लेट्स सी द रिएक्शन. See, no base is, we are taking base here, calcium hydroxide, right. calcium hydroxide और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है,
CO2. Okay, carbon dioxide is a non metallic oxide, right? So बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी फॉर्म रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म सॉल्ट. तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बन रहा है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट. कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही या यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था, मीन्स वाटर इज एडिड हियर, बट यहाँ पे क्या है? सॉलिड फॉर्म में है. यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में था और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ले रखा हमने, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या लिया है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. जब सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बन गया? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3. ओके, CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट और CaSO3 होता है कैल्शियम सल्फाइड, और वाटर विल रिलीज इन दिस प्रोसेस. I hope this is clear to all of you, right? So let's move. One more reaction is left behind, that is base react with acids to form salt or water. ये तो आप लोगों को सभी को पता है, right? तो जब बेस या फिर एसिड्स आपस में, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है? Salt or water. So what is this called? This is called neutralization reaction. Neutralization. So this reaction we have already seen in acids also, right? So NaOH is a base, and when it react with sulfuric acid. जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट और वाटर, राइट. तो व्हाट इज सॉल्ट फॉर्मिंग हियर? दैट इज सोडियम सल्फेट, and water will release. Likewise, when hydrogen ion or hydroxide ion both are combined, they will form water, right? Means acid और base जब combine हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? water, neutral, right? Neutralization reaction is taking place. So let's recall what we have studied. Reaction of bases. See what we have studied. बेस प्लस मेटल. जब बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उस प्रोसेस में, राइट. अब जब हमने बेस और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या हुआ था? कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो रही थी. देयर इज़ नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट. बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मीन्स देयर इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज वी जस्ट डिस्कस्ड. सॉल्ट और वाटर विल रिलीज. एंड बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो देन सॉल्ट और वाटर विल बी द प्रोडक्ट. आई होप दीज आर क्लियर टू एवरी ऑफ यू. दीज आर सम जनरल रिएक्शंस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस वेल all the reactions. So let's see one more thing here. The bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, right, which are soluble in water are known as alkalis. See, this is very important point students here. So what are alkalis? Alkalis वो बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है. सारे के सारे जो बेस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, पर जो एल्कलीज हैं वो कौन से बेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. और देखो यही वो बेस हैं जो क्या थे? स्ट्रॉन्ग बेस थे, जो OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि ये वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं, मीन सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज. सो इट मे बी नोटेड दैट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते, राइट, क्योंकि सारे के सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं है. एल्कलीज आर हाईली कोरोसिव एंड शुड नॉट बी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन. सो जो एल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में, दे गेट हार्म टू आवर स्किन, राइट. तो स्किन के कॉन्टेक्ट में उनको नहीं लेके आना चाहिए. I hope this is clear to you. Now one point is left. Acid or base in water solution. We have discussed that acid produce H plus ion in presence of water, right. water में जब भी हम acid को डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या देगा? H plus आयन देगा, राइट.
तो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H3O पॉजिटिव, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन, राइट। सो सी H प्लस और वाटर, ठीक है, जब H प्लस आयन और वाटर जब रिएक्ट कर रहे हैं या फिर आप इसको इसमें डिज़ोल्व करते हो तो व्हाट इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन, राइट। या फिर जब HCl है, अगर वाटर में आप उसकी डाइल्यूशन करते हो तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड chlorine ion, right? So this is about the acids. When base dissolved in water, the same procedure will takes place. When base dissolved in water, what base will give, we know base will give hydroxide ion, right? So NaOH को जब वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो what it will give, सोडियम Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वाटर को डिजोल्व करते हैं तो व्हाट इट विल गिव, Mg2 पॉजिटिव, राइट, और OH नेगेटिव। सो ये क्या देंगे, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर एसिड्स का वाटर के साथ वाटर के साथ जब भी उसके वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है तो वो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और जो बेस जब वाटर में डिजोल्व होंगे तो वो कौन सा आयन बनाएंगे, OH नेगेटिव। सो दिस इज़ all about acids or bases. I hope this is clear to all of you.